Assalamu alaikum everyone and welcome to another video. Today we are covering chapter number 6 from second year's book, and this is a very interesting chapter. It's also important from examination point of view. This chapter is written by Albert Einstein himself, one of the most greatest या फिर one of the most famous scientists कहना चाहिए of the modern times. The chapter, as it says, the world as I see it, it's about what Einstein thinks of this world or of this life, and what does he think that we should do or how we should lead it. Okay? Without any delay or further ado, let's go towards the writer's introduction. As we know, Albert Einstein, अलग से इनका introduction obviously हमारे chapter की starting के paragraph में भी है. But this is in an introduction more about the essay or the chapter that you are reading. It is a book basically, The World as I See It, and this was written by Albert Einstein in German language. He was born in Germany, so the language he used to write this essay in was German. ज़ाहिर सी बात है, ठीक है? But later on it was translated into English by A. Harris. और इंग्लिश ट्रांसलेशन वॉज पब्लिश्ड इन 1935 और एल्बर्ट आइंस्टाइन की ओरिजिनल जर्मन लैंग्वेज के अंदर दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1934. ठीक है, और इसका ओरिजिनल नेम हमारे पास लिखा हुआ है मैन वेट बिल्ड. दिस वॉज द नेम जिसके साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस बुक को बेसिकली पब्लिश जब किया था, तो उसका जर्मन नेम है मैन वेट बिल्ड. And this original German translation was published, not translation, originally written in German language, was published in 1934. Okay. Moving ahead, अब हमारे पास है introduction of the writer, and this is the introduction that is also present in your books. In this introduction, we are told about Albert Einstein a little bit, जिनके बारे में पहले से हम लोग बहुत कुछ जानते हैं. He is generally regarded as the greatest mathematical physicist. So if anybody asks you कि physics के किस specific domain से ताल्लुक था Albert Einstein का, so always remember to say the mathematical physics, because he himself was one. और Zurich University में he was born into Germany to Jewish parents, but he never himself called a believer. इन्होंने अपने आप को हमेशा एक disbeliever कहा है, religious sense में, philosophical sense में. ठीक है, so even though he was born into a Jewish family, but he never called himself a Jew or any other religion or any other religious group. उसके अलावा he was born in Germany, then he moved to Switzerland when he was like a boy, a very young boy, और वहाँ पे जाके स्विट्ज़रलैंड में ही इनकी सारी ज़िंदगी गुजरी है. बट देन ही मूव टू अमेरिका, और वहाँ पे फिर एज एन अमेरिकन सिटीजनशिप इन्होंने हासिल करके दैट्स वेयर ही डाइड एज वेल. वाइल ही वाज इन ज्यूरिक यूनिवर्सिटी ही गॉट हिज एजुकेशन, ही प्रैक्टिस्ड हिज एजुकेशन, और ज्यूरिक यूनिवर्सिटी के अंदर ही वाज टीचिंग देयर मैथमेटिकल फिजिक्स एज वेल एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर. ठीक है, और उसके बाद फिर ये अमेरिका मूव कर गए थे, एंड दैट्स वेयर ही डाइड एज वेल. In 1941 he moved to America, or in 1921 he was given the Nobel Peace Prize for his services in the field of physics as well, because as we all know Albert Einstein की कुछ ऐसी डिस्कवरीज हैं जिसकी वजह से सब कुछ फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स जो है वो चेंज होकर रह गई है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज दैट ही हैज़ मेड ऑब्वियसली वो है हमारे पास द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेसिकली जो है ये क्यों इतनी कहना चाहिए हमें ट्रांसफॉर्म इसने कर दिया फिज़िक्स को, बिकॉज इस थ्योरी की वजह से जो प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग थी रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस एंड इट्स रिलेशनशिप विद अस एंड हाउ वी अंडरस्टैंड दैम, बिकॉज ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इट वाज कम्प्लीटली चेंज्ड. और वो सब कुछ किसकी वजह से हुआ? आइंस्टाइन की वजह से हुआ, जाहिर सी बात है. इसके अलावा एक और इनका था, ही फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मास एंड केम अप विद द इक्वेशन एनर्जी इक्वल्स टू mc square. And I think we have all seen this equation, we have all heard about this equation. और ये जो relationship है of mass with energy, this was also discovered by Einstein. And because of this theory, later on the atomic bomb, the practicability of atomic bomb was also
created because of this relationship or the equation of energy and mass that was derived by Einstein, right? So modern physics में nobody can compete with him. But अब यहाँ पे ये बात है कि Einstein was like was the greatest scientist, right? And obviously the work he has done or the papers he wrote, they were very specific to physics, and the terminologies he used were very subject wise, specific to the target audience जो कि physics के students हो या scientific background रखते हो. तो आपकी बुक में भी यही mention है, if you can notice, कि for the layman, एक आम इंसान के लिए Einstein hasn't written quite a lot. He has done a lot of work, but उसको समझने के लिए you need to have the basic understanding of physics and science and have that background. लेकिन one of the topics या one of the pieces of writing he has written for the layman, for the general audience, उसमें ये भी शामिल है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, the world as I see it. बिकॉज इसमें उन्होंने लैंग्वेज को, टर्मिनोलॉजीज़ को इस तरह का रखा है कि पढ़ने वाली जो ऑडियंस है, इवन दो इफ़ दे डोंट हैव दैट मच ऑफ साइंटिफिक बैकग्राउंड, दे कैन स्टिल ग्रास्प दैट कॉन्सेप्ट, which we do not find in a lot of his work, because obviously he was a scientist and that was his main pristine कि वो उस साइंस के फील्ड में काम करें. तो एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं है आइंस्टाइन के लिखा हुआ जो हमें समझ आ सके नॉर्मल नॉन साइंटिफिक स्टूडेंट को. लेकिन those who have, they can easily understand, and those who don't have, उनके लिए one of the chapters या one of the pieces he has written उसमें से शामिल है The World as I See It, which we will be covering in this topic, in this video. So I hope you stick with me and take the time to kindly like and also subscribe the channel. So Albert Einstein is starting his chapter by calling us what an extraordinary situation of us mortals. हम लोगों के लिए बहुत extraordinary situation है. Each of us is here for a brief sojourn. Brief का मतलब है बहुत छोटा सा time, right? और sojourn का मतलब होता है temporary stay. तो वो कह रहे हैं कि हम हर कोई इस दुनिया में किस टाइम के लिए आए हैं, फॉर अ ब्रीफ सोजोर्न, यानी कि बहुत ही छोटे से टाइम स्पेंड करने के लिए हम आए हैं. वी कैन नॉट एक्सटेंड दैट टाइम फर्दर, एक सेकंड फर्दर भी नहीं, और फिर हमें चला जाना. सो व्हाट इज आस्किंग कि फॉर व्हाट पर्पस, क्यों है भाई हम आए हैं, हम मॉर्टल हैं, हमें मरना भी है, वी नो दैट. एक ख़ास टाइम तक हम आए हैं फॉर ब्रीफ सोजोर्न, बहुत टेम्पररी स्टे, एंड देन वी आर सपोज टू डाई. सो ही इज़ आस्किंग कि व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड इट, व्हाई आर वी हियर, राइट? एंड ही इज़ आंसरिंग एज वेल कि ही नोज़ नॉट, कि एक आम इंसान, एक जनरल इंसान की अगर हम बात करें, द पर्सन डजंट नो वाई, व्हाट्स द पर्पस ही हैज़ इन लाइफ, क्यों आया है वो दुनिया में, दे डोंट नो दैट. दो ही समटाइम्स थिंक्स ही फील्स इट, यानी कि वो कह रहे हैं कभी कभार इंसानों को लगता है कि मे बी वी नो वाई आर वी हियर, दिस इज़ द पर्पस, वी हैव टू डू दिस एंड दैट, हमें ये करना है, हमें वो बनाना है, हमें यू नो, डिफरेंट पीपल डिफरेंट ओपिनियंस. मगर आइंस्टाइन कह रहे हैं अगर हम एक डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, विदाउट गोइंग एनी डीपर, कोई फिलोसफिकल बात ना करें कि भाई ये पर्पस है या ये करना है, तो एक जनरल फेलो मैन जो है हमारा, वी कैन से कि हम उनके लिए एग्जिस्ट करते हैं, राइट? आपके घर वाले जो हैं, आपकी फैमिलीज़ जो हैं, जिनकी खुशियाँ आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो आपके डायरेक्ट रिलेशनशिप्स में आते हैं, वी एग्जिस्ट फॉर देम. ऐसा ही है. अगर हमारा कोई बहुत क्लोज रिलेटिव की डेथ हो जाती है, सो वी फील एक्सट्रीमली सैड बाय दैट, डू वी? या फिर अगर आपके बहन भाइयों को कोई बहुत ज़बरदस्ती सक्सेस मिल जाए, आपको कुछ बहुत बड़ी खुशी मिल जाए, आप बहुत कुछ अकम्प्लिश करने हैं दुनिया में, तो दे वुड बी हैप्पी फॉर यू. कुछ बुरा होगा, दे वुड बी सैड फॉर यू. द सेम गोज़ फॉर अस एज वेल. तो इसका मतलब ये है कि मे बी वी एग्जिस्ट फॉर आवर फेलो मैन, जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारी फैमिली हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने जिनकी हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन अस, हम उनके लिए एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? और आगे वो एक और बात भी कह रहे हैं कि वी ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर ऑल ऑफ दोज अननोन टू अस, यानी कि वो लोग जिनको हम पर्सनली नहीं जानते, जिनसे कोई पर्सनल एफिलिएशन नहीं है, लेकिन समहाउ वी आर कनेक्टेड विद देम बिकॉज ऑफ द टाई ऑफ सिंपैथी. और इसकी एग्जांपल आप कह सकते हैं कि अगर अभी आप, वी ऑल नो द इशू ऑफ फ़लस्तीन राइट नाउ, ऐसा ही है. अब फ़लस्तीनियंस के साथ हम में से आई थिंक किसी का भी कोई ब्लड रिलेशनशिप तो नहीं होगा, हार्डली कोई होगा ऐसा पाकिस्तानी, दे मे हैव द रिलेशनशिप इन फ़लस्तीन, बट वी फील दे आर गोइंग थ्रू द वर्स्ट टाइम. ऐसा है. वाई डू वी फील दैट? क्यों? हम उनसे कनेक्टेड तो नहीं हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली अ रिलेशनशिप. वाई?
बिकॉज ऑफ द टाई ऑफ सिंपैथी. एग्जैक्टली अनाबिया. एंड वाई आर वी एन उम्मा? क्योंकि हमारा रिलीजन है क्या, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिलीजन वी हैव सिंपैथी फॉर देम. ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक. ह्यूमैनिटी सिंपैथी के लिए. तो यहाँ पे वो यही बात कह रहे हैं कि हम इन दो ग्रुप्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं. वन इज़ द वेरी क्लोज वन, द क्लोज पीपल, जो कि हमारे बिल्कुल रिलेशनशिप में है, फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड द सेकंड वन, द पीपल जिनके साथ हम सिंपैथी की वजह से कनेक्टेड हैं. इवन अगर हम विद इन पाकिस्तान भी देखें, अगर कभी कोई अर्थक्वेक आता है, कोई फ्लड के विक्टिम्स होते हैं, वी फील ना कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, कि उनके साथ बुरा हुआ है, कि दे हैव आर गोइंग थ्रू द बैड टाइम बिकॉज ऑफ सिंपैथी. ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं भाई वो, 100 times एवरी डे. आइंस्टाइन अपने आप को एटलीस्ट 100 times रोज़ रिमाइंड करवा रहे हैं कि माई इनर एंड आउटर लाइफ डिपेंड ऑन द लेबर ऑफ अदर मैन. एग्जैक्टली अनाबिया. एंड आइंस्टाइन इज टेलिंग अस कि मैं रोज़ अपने आप को, एवरी सिंगल डे अपने आप को बार बार रिमाइंड करवा रहे हैं, याद करवा रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी के बहुत सारी कंफर्ट्स जो हैं, यानी कि इनर एंड आउटर लाइफ, बहुत सारे कंफर्ट्स, बहुत सारी आसानियाँ जो इनकी ज़िंदगी में हैं, दे आर बेसिकली द डायरेक्ट एफर्ट ऑफ अ लॉट ऑफ अदर पीपल. वेरी गुड लाइबा. ही इज़ इन डेप्थ ऑफ देयर हार्ड वर्क. अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि लुक अराउंड योर सेल्फ. अभी आप सब अपने घरों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, राइट. लुक अराउंड योर सेल्फ. आपके पास घर में रखा हुआ फर्नीचर भी होगा, आपके पास घर में पावर सप्लाई भी आ रही है, राइट. आप अभी अपना कोई ना कोई मोबाइल डिवाइस यूज़ कर रहे होंगे, कोई लैपटॉप यूज़ कर रहा होगा. डिड वी मेक ऑल ऑफ दीज थिंग्स? वी डिडंट, राइट. देयर आर अ लॉट ऑफ अदर पीपल, वी डोंट इवन नो कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं, बट उनके हार्ड वर्क, उनके लेबर की वजह से वी आर एंजॉइंग द कम्फर्ट्स. ऐसा ही है, ठीक है. This is what Einstein is telling us, कि a lot of our comforts in life depend on the labors of other men. दूसरों के लिए, living and dead, कुछ जिंदा भी हैं, कुछ मर भी चुके हैं, जाहिर सी बात है. बट इसका मतलब क्या है? आइंस्टाइन इस, जैसे लाइबा ने बात की कि he feels I'm in debt, कि मैं उनका कर्जदार हूँ, कि मैं उनका मखरूज़ हूँ. इसका मतलब क्या है कि he has to return them. जब हम किसी से कोई लोन लेते हैं, we take it with the intention कि आपको हम रिटर्न बैक करेंगे. तो जब हम सोसाइटी में रहते हुए दूसरों के लेबर्स का फ़ायदा लेके अपनी ज़िंदगी में कंफर्ट लेके आ रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव टू सर्व द सोसाइटी इन द सेम वे. अगर हम किसी के स्किल से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो फिर एज ए कम्युनिटी हमें अपने स्किल का फ़ायदा पूरी कम्युनिटी को भी देना है, या एटलीस्ट जितना दे सकते हैं. ठीक है. तो आइंस्टाइन एक्सर्टिंग हिमसेल्फ एवरी सिंगल डे 100 times कि आई हैव टू सर्व द सोसाइटी इन द सेम मेजर, कि मुझे भी किसी न किसी तरीके से लोगों को सर्व करना है, कुछ ना कुछ देकर. ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत कुछ रिसीव कर चुका हूँ, कुछ रिसीव कर रहा हूँ. सो हम यहाँ कह सकते हैं कि एज अ टीचर मे बी यू कैन स्प्रेड आउट एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, राइट. एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर यू कैन मेंटेन डिग्निटी इन टर्म्स ऑफ कि आप ऑनेस्टली काम करें, आप ब्राइबरी को, नेपोटिज्म को बिल्कुल ना आने दें. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ अ सोल्जर यू मस्ट ऑलवेज स्टैंड फॉर ह्यूमैनिटी, नॉट फॉर सेल्फिश थिंग्स. एज अ साइंटिस्ट आप साइंस को फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड इस्तेमाल करें. ऐसा ही हो सकता है. बिल्कुल ठीक था हमें. सही है, ये बात समझ आ रही है सबको? वेरी गुड एवरीवन. आई एम स्ट्रॉन्गली ड्रॉन टू द सिंपल लाइफ. आगे आइंस्टाइन बहुत मज़े की बात करें. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट. हम यही कहते हैं ना कि अच्छी से अच्छी डिग्री होगी, इफ़ वी हैव क्वालिटी एजुकेशन, तो फिर बहुत ज़बरदस्ती जॉब मिलेगी, और उस जॉब के बाद we'll get a lump sum salary as well, and we'll have a lot of comforts, a big house, a luxurious car, all the wishes will come true. All of us think that. Einstein, who happens to be the greatest scientist of modern era, what is he saying? I am strongly drawn to the simple life. He is saying कि मुझे तो simple life की तरफ है attraction. I want to lead a simple life. I want to live a simple life. He isn't even attracted towards these luxuries जिनके लिए हम एजुकेशन हासिल करते हैं और जॉब ढूंढते हैं. ऐसा ही है. एंड हम ऑफन ऑपरेस्ड का मतलब है कि ही एक ही ख्याल बार बार इनके दिमाग में आ रहा है और हट नहीं रहा है. व्हाट इज़ दैट थॉट? कि आई एम इनग्रोसिंग अननेसेसरी अमाउंट ऑफ द लेबर ऑफ माई फेलो मैन. यानी कि ही बिलीव्स कि अगर हम अपने आप को लग्जरी से सराउंड रखेंगे कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और वो भी है, और वो भी है, और वो भी है, इसका मतलब है कि जिस लेबर की आपको ज़रूरत है भी नहीं, आप लोगों को उस अननेसेसरी लेबर को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं.
किसी न किसी इंसान की मेहनत के बाद ही आप तक चीज़ें पहुंचती हैं ना, चाहे वो एक एयर कंडीशनर हो, चाहे वो कारपेट हो, चाहे वो एक कुछ भी चीज़ हो. Others are doing the hard work to make these things and then you get them in your home. तो आइंस्टाइन कह रहे हैं कि इफ़ वी विल लिव अ सिंपल लाइफ, जाहिर सी बात है ये चीज़ें होंगी नहीं हमारे पास. बट इफ़ अगर हम अपनी ज़िंदगी में लग्जरीज को शामिल करते रहेंगे, दैट मीन्स कि आप अननेसेसरी लेबर अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है. एंड ही बिलीव्स कि इसीलिए हमें सिंपल लाइफ गुजारनी चाहिए ताकि हम लोगों को अपने लिए इस्तेमाल ना करने हो इन अ वे. ठीक है. अब आगे वो इसी से रिलेटेड एक और बात कह रहे हैं कि आई रिगार्ड क्लास डिफरेंसेस एज कॉन्ट्री टू जस्टिस. क्लास डिफरेंसेस का मतलब ये है कि वी ऑल नो हमारी सोसाइटी में वैसे कुछ क्लासेस हैं. क्या हैव यू पीपल एवर नोटिस पाकिस्तान की स्पेसिफिक सोसाइटी की बात करें, डू वी ऑल बिलोंग टू द सेम क्लास या फिर डू वी ऑल हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स और क्लासेस? कुछ ऐसा है? वेरी गुड तहामी. वी हैव गॉट सम पीपल जिनके लिए हमने रखा हुआ यह है कि बेचारे ये गरीब हैं, तो दे कैन नॉट गो टू सर्टेन रेस्टोरेंट्स. ऐसा होता है ना, अगर कोई बेचारा थोड़ा सा पूरा क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स आ भी जाए तो पीपल स्टार्ट लुकिंग एट देम इन अ वे कि कोई एलियन आ गया. एंड अनफॉर्चुनेटली इन समटाइम्स नॉट इवन अलाउड टू एंटर सर्टेन एरियाज़. क्यों? क्योंकि वो गरीब हैं. बहुत डिफरेंस है. एग्जैक्टली. देयर आर सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि इतने ज़्यादा फाइनेंशियली एक्सपेंसिव हैं कि इवन द मिडिल क्लास पीपल कैन नॉट गो देयर. ऐसा ही है. तो क्लास डिफरेंस एग्जिस्ट इन एवरी सिंगल डोमेन ऑफ सोसाइटी, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो. ठीक है. बट ही बिलीव्स कि क्लास डिफरेंस इज़ कॉन्ट्री टू जस्टिस. कॉन्ट्री का मतलब है ऑपोजिट. अगर हम सोसाइटी में जस्टिस मेंटेन करना चाहते हैं, इंसाफ मेंटेन रखना चाहते हैं, इक्वालिटी रखना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक लाइबा, तो फिर क्लास डिफरेंस कैन नॉट एग्जिस्ट विद जस्टिस. अगर सोसाइटी में आप इंसाफ चाहते हैं तो फिर आपको डिफरेंसेस हटाने होंगे, क्लास डिफरेंसेस सोसाइटी के अंदर. इफ़ यू आर कीपिंग देम इन प्लेस दैट मीन्स आप जस्टिस करना चाहते ही नहीं हैं. और वेरी फ्रैंकली यू पीपल शुड नो कि जो पाकिस्तान का जुडिशरी का सिस्टम है, इवन उस सिस्टम जस्टिस के सिस्टम के अंदर भी क्लास डिफरेंस पेनिट्रेट किया हुआ है, फ्रॉम द वेरी टॉप टू द वेरी बॉटम. यानी कि आप हाईएस्ट कोर्ट तक चले जाएं या फिर आप बिल्कुल ही लोअर कोर्ट में आ जाएं. कभी कभी हमारे यहाँ मुल्क में अदालतें, कोर्ट्स लगते हैं रात के वक्त, लेट नाइट, एंड दे डू द डिसीजन. एंड वी कैन मीट अ लॉट ऑफ पीपल जिनके केसेस 30 ईयर्स तक भी चलते चले आ रहे हैं, बट देयर इज़ नो डिसीजन. क्यों? वी ऑल नो क्लास डिफरेंस. ठीक है. अच्छा भाई, आप कह रहे हैं कि क्लास डिफरेंसेस इन द लास्ट रिजॉर्ट आर बेस्ड ऑन द फोर्स. लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है क्लास डिफरेंस खुशी खुशी कोई भी कबूल नहीं करता. दे आर ऑलवेज इम्प्लीमेंटेड बाय फोर्स. आपने ताकत के ज़ोर पे इनको नाफिज करना होता है सोसाइटी में. और वो आप क्यों करते हैं? क्योंकि सेलेक्टेड फ्यू को अपना फ़ायदा उठाना होता है, तभी ये होता है. दैट्स वाई वो कह रहे हैं कि बाय फोर्स क्लास डिफरेंस इम्प्लीमेंट किया जाता है. दैट्स वाई ऑल्सो जस्टिस के अगेंस्ट है. आई ऑल्सो कंसिडर दैट प्लेन लिविंग इज़ गुड फॉर एवरीबडी. पीछे सिंपल लिविंग की बात की, मतलब था बहुत ज़्यादा लग्जरीज नहीं हो, बहुत ज़्यादा दूसरों के लेबर्स हम इस्तेमाल ना करें. अब वो कह रहे हैं प्लेन लिविंग, सादा ज़िंदगी, यानी कि आपका खाना पीना भी सादा हो, पहनना ओढ़ना भी सादा हो. हमारे यहाँ तो जो बकरीद आती है, अभी आने वाली है कुछ मंथ्स में, उसका असल मैसेज क्या है? अल्लाह के लिए कुर्बानी करना. दैट्स द मैसेज, राइट? लेकिन उसमें भी एक कंपटीशन के तौर पे पीपल गो एंड बाय एज एक्सपेंसिव एनिमल्स एज दे कैन. ऐसा ही होता है. एग्जैक्टली लाइबा. इट्स जस्ट एन आयरनी कि आवर कंट्रीज नेम इज़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, yet not a single thing is followed according to religion. ठीक है. और यहाँ पे आइंस्टाइन का अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़ा है, इवन दो ही इज सेइंग कि रिलीजन को फॉलो नहीं करते, बट आई थिंक प्लेन लिविंग, सिंपल लिविंग, क्लास डिफरेंस वाली जो बात है, दे आर एग्जैक्टली व्हाट आवर रिलीजन टीचेस. एंड यू नो कि इवन दो यूरोपियन सोसाइटी में रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता, बट बिकॉज ऑफ दीज वैल्यूज़ वहाँ पे जस्टिस मौजूद है. They don't even follow their own religion, जो कि क्रिश्चियनिटी है, but somehow they still have justice.
क्यों है वो? बिकॉज ऑफ दीज बेसिक टीचर्स। अ लॉट ऑफ लाइबा, ये तो बहुत ही बड़ा इशू है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि उसमें हम बच्चों को सिर्फ रटा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, नथिंग एल्स। और आप सोचो कि हम इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, और कहाँ से पढ़ रहे हैं? नर्सरी क्लास से पढ़ रहे हैं, एंड इट स्टेज विथ यू जब तक आप यूनिवर्सिटी नहीं पहुँच जाते, तब भी आपके पास इंग्लिश मौजूद है। बट वॉट आर वी लर्निंग? आर वी लर्निंग एनीथिंग? अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, जो बिल्कुल बेसिक सा ग्रामर होता है आपके पास, टेंसेज और नरेशंस, आई लर्न देम व्हेन आई बिकेम अ टीचर माई सेल्फ एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग माई लेसन प्लान्स। और इंग्लिश अगर एज ए लैंग्वेज पढ़ाना है तो भाई लाइक 10 years शुड बी इनफ फॉर एवरी स्टूडेंट टू लर्न कि हमने इंग्लिश कैसे बोलनी है। डोंट यू गाइस थिंक? एंड इफ इट इजंट बीइंग हैपनिंग फॉर सो मैनी ईयर्स, पाकिस्तान बने हुए 70 years से भी ज़्यादा हो चुका है अब तो फिर शुडंट वी डू समथिंग अबाउट दिस एजुकेशन सिस्टम? हम साइंस बच्चों को पढ़ा रहे हैं एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, क्लास 1 से लेके चलता चला जा रहा है क्लास 8 तक। व्हाट्स हैपनिंग? मैथ्स हम सबको पढ़ा रहे हैं। व्हाट्स हैपनिंग? व्हाट इज़ इट गिविंग अस? नो, नथिंग। इससे बेहतर ये है कि हम लोगों को स्किल बेस्ड एजुकेशन देना, एटलीस्ट उन्हें स्किल आ जाएगा। दे वुड नो कि सोसाइटी में भूखा मरना नहीं है। दे विल हैव अ स्किल, दे विल नो हाउ टू अर्न मनी। आई थिंक इन 10 years को हमें इस चीज़ के लिए यूज़ कर लेना चाहिए स्कूल का। एग्जैक्टली अनाबिया, वी आर जस्ट मेमोराइजिंग थिंग्स, वी आर डूइंग नथिंग एल्स देन दैट। बिल्कुल ठीक। शाने भाई, so Einstein himself is saying कि plain living is good for physical health and for mental health, यानी कि we'll be able to lead a more healthy life and we'll be able to focus better, we'll have a peaceful mind as well. In human freedom in the philosophical sense, I'm definitely a disbeliever. अभी हम religion पे पहुँच रहे थे and Einstein is saying कि अगर हम फ़िलोसफिकल सेंस में बात करें तो आई एम अ डिसबिलीवर। मैं डिसबिलीवर हूँ। डिसबिलीवर का मतलब है कि मैं किसी भी रिलीजन पे यकीन नहीं करता, ठीक है। एवरीबडी एक्ट्स नॉट ओनली अंडर एक्सटर्नल कंपल्जन, ही बिलीव्स कि हर कोई जब कोई भी एक्शन करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा एक्शन हो, इट्स डन बिकॉज ऑफ 2 reasons। एक रीज़न ये है कि आपके पास एक्सटर्नल कंपल्जन होती है। कंपल्जन का मतलब होता है कोई आपको किसी चीज़ को करने पे मजबूर करे, आपको उभारे कि भाई ये करो, या फिर बिकॉज ऑफ सम रीज़न आपको रिएक्शन देना। तो कह रहे हैं कि जब भी कोई इंसान कोई एक्शन करता है, एक तो उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स शामिल होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसकी इनर नेसेसिटी भी होती है, यानी कि अंदर से उसकी अपनी मर्ज़ी भी होती है। इट्स नॉट जस्ट कि आपको शैतान बहका रहा है, इट्स कि हम खुद भी वो काम कर रहे हैं, ठीक है। शोपेनहावर कौन है आपके पास? ही वॉज, हम कह सकते हैं, अ फिलोसोफर। इनकी एक बहुत मशहूर सेइंग है, अ मैन कैन डू एज ही विल। कैन का मतलब है कर सकना, एबिलिटी। तो कह रहे हैं अगर आदमी विल करे, विल का मतलब है अगर वो चाहे कुछ करना, तो ही कैन डू, वो आराम से कर सकता है, बट नॉट विल एज ही विल। आगे क्या मतलब हुआ इसका? अगर हम कुछ करना चाहें तो हम आराम से कर सकते हैं, बट अगर हमारे अंदर इरादा ही ना हो करने का, तो फिर वी कैन नॉट डू एनीथिंग। दिस कोर इज़ अ फेवरेट, यस लाइबा, यानी कि इफ़ वी हैव द विल पावर देन वी कैन ईजिली गो एंड गेट इट डन। लेकिन अगर विल पावर ही नहीं है, अगर इरादा ही नहीं है, तो फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे, चाहे वो फिर अच्छा काम हो या फिर वो बुरा काम हो। यू नीड टू हैव दिस इन यू। अगर आपके अंदर ये विल पावर है, विल है, इरादा है, तभी वो काम होता है, वरना कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता, ठीक है। एंड आइंस्टाइन इज सेइंग कि सिंस हिज यूथ, अपने बचपन से लेके टू दिस डे, ही इज़ कीपिंग दिस कोटेशन एज एन इंस्पिरेशन फॉर हिम। जब भी लाइफ में मुश्किलात आई, हार्डशिप्स आई, पेशेंस की ज़रूरत है, ही गोज़ अहेड, लुक्स एट दिस कोटेशन, गेट्स द मोरालिटी, अपने अंदर मोरल को बढ़ाते हैं, एंड देन ही गोज़ अहेड। दिस फीलिंग mercifully mitigates the sense of responsibility which so easily becomes paralyzing। आप कह रहे हैं कि ज़िंदगी में जो आपकी हार्डशिप्स होती हैं, मुश्किलात होती हैं, ऑब्वियसली वी ऑल हैव आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन लाइफ, ऐसा ही है। अगर हम अपने पेरेंट्स का जिक्र करें, दे हैव डिफरेंट सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके पास अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सोसाइटी में आप और प्रोफेशनल्स को देखें, उनकी अलग अलग हैं, राइट, हर इंसान की हैं। लेकिन तो कह रहे हैं ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समटाइम्स इट कैन बी सो स्केरी
कि इट कैन पैरालाइज अस. पैरालाइज का मतलब है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आगे ढेर हो जाएं. यानी कि वी बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वी हैव वी मे बी नॉट एबल टू कि हम वो सब कर सकें बिकॉज दे आर जस्ट टू मच, राइट. एंड इट प्रिवेंट्स us फ्रॉम टेकिंग ourselves and other people too seriously. और ज़िंदगी की ये हार्डशिप्स और मुश्किलात जो हैं, व्हाट हैपन्स इन टर्न, जब हम इनको अपने सर पे चढ़ा लेते हैं या फिर वी कैन नॉट डू एनीथिंग, एक तो दे बिकम पैरालाइजिंग, यानी कि हम कुछ कर नहीं पाते लाइफ में उनके अगेंस्ट. और फिर उसके अलावा इट प्रिवेंट्स us फ्रॉम टेकिंग ourselves and other too seriously, यानी कि हम ज़िंदगी से वो ह्यूमर या वो मज़ा जो है हम उसको खो देते हैं. वी कंड्यूसेस टू अ लाइफ वेयर ह्यूमर अबव ऑल हैज़ इट्स प्लेस. यानी कि वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी में अगर ह्यूमर नहीं है तो फिर ये ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है. बट दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉजेज अस कि हम इसी ह्यूमर को साइड पे कर दें. हम बहुत संजीदा हो जाते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं. अगर लाइफ में कुछ बुरा भी हो जाए, आपको कोई प्लान फेल हो जाए, व्हाट हैपेंस इन रिटर्न, हम कमरे में बंद होकर रह जाते हैं. हम लोगों से बातें नहीं कर रहे होते, सब हमें आके मना रहे हैं और ये करें वो करें, लेकिन हम क्या करें, मुझे नहीं करना, मेरा दिल नहीं चाह रहा, आई एम बिज़ी, आई एम नॉट इन द मूड. ऐसा ही होता है, बहुत नॉर्मल सी बात है. हर चीज़ में यही कर रहे होते हैं हम लोग. लेकिन आइंस्टाइन इज सेइंग कि ह्यूमर अबव ऑल हैज़ इट्स ड्यू प्लेस. हर चीज़ से ज़्यादा ऊपर लाइफ में किसकी वैल्यू है? ह्यूमर की वैल्यू है, एंटरटेनमेंट की वैल्यू है. यू हैव टू कीप योर सेल्फ रिलैक्सड और उसके लिए ह्यूमर इज़ देयर टू हेल्प यू. ठीक है. नेक्स्ट अब हम क्या बात करें, आइंस्टाइन हमें बता रहे हैं कि अगर टू इंक्वायर, इंक्वायर का मतलब क्या होता है भाई? इंक्वायर का मतलब है किसी चीज़ को पता करना. तो कह रहे हैं कि इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट, यानी कि मकसद, किस चीज़ का मकसद? वंस ओन एग्जिस्टेंस. हम क्यों बनाए गए हैं भाई? वाई वर वी क्रिएटेड. तो कह रहे हैं कि अगर मुझे कभी कभी ये बात बहुत अजीब सी लगती है. एब्सर्ड का मतलब है स्ट्रेंज, अजीब व गरीब से, कि लाइक वाई आर वी हियर, हमें कुछ हासिल करना है और फिर हम मरने के बाद एक आफ्टर लाइफ है. आइंस्टाइन के नज़दीक ये सब बहुत एब्सर्ड सी बात है. ही बिलीव्स कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है यहीं है, फिर ख़त्म. तो यहाँ हमें कैसे रहना है, दैट्स व्हाट हिज ऑल पॉइंट ऑफ व्यू इज़ अबाउट. ठीक है. कहने लेकिन हर इंसान इस दुनिया में जो रहता है, एवरीबडी हैज़ सर्टेन आइडियल्स. हम सब कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी बना के कुछ ना कुछ आइडियल्स के साथ ही रहते हैं, राइट. जैसे एज मुस्लिम्स वी बिलीव कि वी विल बी जज्ड ऑन आवर एक्शंस. जो हमारे बुरे एक्शंस हैं उन पे हमें जाहिर सी बात है वी विल बी पनिश्ड. जो अच्छे एक्शंस हैं वी विल बी रिवॉर्डेड. ये हमारे आइडियल्स हैं, ऐसा ही है. और जितने भी हमारी ज़िंदगी के एंडीवर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो हमारी जजमेंट्स होती हैं, जो हम फैसले करते हैं, वट एवर वी डू इन लाइफ, इट्स ऑल डायरेक्टेड बिकॉज ऑफ दीज आइडियल्स. ऐसा ही है. तो बहुत सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग आइडियल्स हैं, बट एवरी सिंगल ग्रुप हैज़ सम आइडियल्स इन देयर लाइफ. ठीक है. लेकिन आइंस्टाइन क्या कह रहे हैं कि अगर हम इन आइडियल्स की बात करें कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो ही इज़ सेइंग कि आप कुछ भी आइडियल बना लें, लेकिन ईज़ और हैप्पीनेस को कभी ज़िंदगी का आइडियल ना बनाएं. यानी कि यू शुड नेवर बी इन अ पोजीशन कि आप किसी भी चीज़ को क्यों कर रहे हैं, ईज़ हासिल करने के लिए, आसानी हासिल करने के लिए, या फिर हैप्पीनेस हासिल करने के लिए. अब ये थोड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि वी ऑल वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ, डोंट वी ऑल वांट कि हमारी लाइफ में ईज़ हो, आसानियाँ हो, मुश्किलात ना हो. ऑल ऑफ अस वांट दैट. लेकिन ही इज़ सेइंग कि नेवर मेक दीज टू थिंग्स योर आइडियल्स. क्यों? बिकॉज दे एंड इन देमसेल्व्स. यानी कि दे डोंट हैव अ वेरी परमानेंट वैल्यू. ये दोनों चीज़ें खुद ही ख़त्म भी हो जाती हैं. यू डोंट नीड टू क्रिएट अ सर्टेन प्लान कि मैं ऐसे जाके ये करूँ और फिर वैसे जाके वो करूँ. अल्टीमेटली आपके हाथ से हैप्पीनेस भी चली जाती है, ईज़ भी चली जाती है. ऐसे ही होता है. लाइफ इज़ अ पैकेज ऑफ अप्स एंड डाउन्स. कभी खुशी, कभी गम, कभी यू आर एट द टॉप, कभी यू आर एट द बॉटम. इट्स टेम्पररी. एग्जैक्टली. दे आर नॉट सो परमानेंट कि हम इनको आइडियल्स बना के बैठे हैं अपनी ज़िंदगी में. ठीक है. और कह रहे हैं कि आई कॉल मोर प्रॉपर फॉर अ हर्ड ऑफ स्वाइन विच हैव लाइटेड मी ऑन माई वे. कह रहे हैं अगर यू आर फॉलोइंग बिहाइंड द आइडियल्स ऑफ हैप्पीनेस एंड ईज़, तो आपकी वैल्यू सिर्फ उसी तरह की है जो कि एक भेड़ बकरियों का एक जाता चला जा रहा है ग्रुप. स्वाइन का मतलब होता है पिग, राइट. बट यहाँ पे व्हाट ही एक्चुअली मीन्स इज़ कि आप सिर्फ एक जानवरों के ग्रुप की तरह, एनिमल्स के ग्रुप की तरह, हु हैव नो माइंड, हु हैव नो थिंकिंग, दे आर जस्ट वॉकिंग. रोड पे भी चल रहे होते हैं, आप उन्हें किसी पुल पर चढ़ा दें, वहाँ पे भी वो चढ़ जाएंगे. वी हैव ऑल सीन दिस इन आवर कंट्री, राइट.
These animals just keep on walking. They don't know where they are going, why they are going. जहाँ भी खाना नजर आए बस चढ़ते चढ़े जा रहे हैं, चढ़ते चढ़े जा रहे हैं. सही है. ठीक है. सो अगर ईज़ नहीं रखना, अगर हैप्पीनेस को भी आइडियल नहीं रखना, तो व्हाट आइंस्टाइन बिलीव्स हमें रखना चाहिए वो है इनके नज़दीक ट्रुथ, गुडनेस और ब्यूटी. यानी कि इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग एल्स ही इज़ आस्किंग अस कि हम ट्रुथ को, गुडनेस को और ब्यूटी को अपनी ज़िंदगी का आइडियल्स बना लें. ठीक है. यानी कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग वी हैव टू कीप दीज 3 प्रिंसिपल्स इन आवर माइंड, या फिर इन 3 चीज़ों को हासिल करना है तो फिर हम अपनी ज़िंदगी के आइडियल्स बना सकते हैं. अब ट्रुथ का मतलब है सच्चाई, गुडनेस का मतलब है अच्छा काम करना, राइट, अच्छाई. ब्यूटी का मतलब है खूबसूरती, बट इट्स नॉट जस्ट द फिजिकल ब्यूटी, इट्स अबाउट द नेचुरल ब्यूटी एज वेल. कोई भी चीज़ जो कि आपको एक ब्यूटी, एक खूबसूरती का फीलिंग दे बेसिकली. एग्जैक्टली. इनर ब्यूटी एज वेल. बिल्कुल ठीक लाएगा. सही है भाई. अब दीज आर द 3 आइडियल्स जो कि आइंस्टाइन कह रहे हैं कि हमें अपनाने चाहिए, एंड दीज आर द आइडियल्स जो कि आइंस्टाइन ने अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया हुआ है इनको. ठीक है. without the sense of fellowship with men of like mind. आगे वो बात कर रहे हैं. फेलोशिप का मतलब होता है, फेलो का मतलब है साथी, फेलोशिप का मतलब है उनके साथ आपका पूरा रिलेशनशिप, आप उनके साथ उठना बैठना, ऑल ऑफ दैट. कह रहे हैं कि अगर हमारे पास फेलोशिप ना हो मैन ऑफ लाइक माइंड की. लाइक माइंड का मतलब है जो लोग आपकी तरह सोचते हैं, जिनके ऑब्जेक्टिव्स लाइफ में आपकी तरह हैं, जिनका पर्पस लाइफ में आपकी तरह है. अगर ये हमारे पास ना हो तो फिर कह रहे हैं कि हम बेसिकली द इटर्नली अनअटेनेबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंटिफिक रिसर्च वुड हैव बीन एम्प्टी. कह रहे हैं इफ़ वी डोंट हैव द फेलोशिप ऑफ द पीपल हु थिंक लाइक अस, हु हैव द ड्रीम्स लाइक अस, हु हैव ऑब्जेक्टिव्स लाइक अस, तो फिर ये ज़िंदगी बहुत एम्प्टी सी होगी. कुछ हासिल करना, कुछ भी इतना वैल्यू नहीं करेगा आपके लिए जब तक यू सराउंड योर सेल्फ विद द पीपल हु थिंक एंड एक्ट लाइक यू. ये बात समझ आ रही है थोड़ी सी. यानी कि ज़िंदगी में फेलोशिप होना ज़रूरी है. यू कैन नॉट बी ऑल अलोन इन द लाइफ एंड एक्सपेक्ट कि आप सब कुछ हासिल करना. यू नीड सम सॉर्ट ऑफ सेंस ऑफ फेलोशिप अराउंड यू. और कौन सी फेलोशिप, कौन से लोग हु थिंक एंड एक्ट एंड बिहेव लाइक यू. ठीक है. ये बात समझ आ रही है. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है. यहाँ पे ही इज़ मैंशनिंग फेलोशिप, लोगों के साथ उठना बैठना. और इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे वेयर ही मेंशंस के इन्होंने ना अपनी कंट्री से अपने आप को रिलेटेड समझा है, ना फैमिली से, ना किसी से भी. सो ये थोड़े से कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं आइंस्टाइन के लिए. बिल्कुल ठीक लाइबा, बिकॉज वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल हु आर अराउंड अस. सो ही इज़ एम्फसाइजिंग कि हम उन लोगों में ही रहें हु थिंक एंड एक्ट एंड हैव द सेम ड्रीम्स लाइक यू. ठीक है. द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन एंडीवर. ऑर्डिनरी ऑब्जेक्टिव का मतलब है एक जनरल इंसान, एक आम इंसान जब भी कोई ह्यूमन एंडीवर, कोई कोशिश करता है, कोई भी एक्शन करता है, कोई भी कुछ हासिल करने के लिए करता है, वो क्या चीज़ें होती हैं? प्रॉपर्टी, आउटवर्ड सक्सेस एंड लग्जरी. प्रॉपर्टी का मतलब घर, पैसा, ज़मीन. आउटवर्ड सक्सेस का मतलब है लोग मुझे पहचाने, मैं बहुत पॉपुलर हो जाऊँ, डिस्टिंग्विश्ड हो जाऊँ, मेरी वैल्यू बन जाए, फेस वैल्यू बढ़ जाए मेरी. एंड लग्जरी का मतलब है वही आसानियाँ. सो आर इन दीज द थिंग्स दैट जो हम भी हासिल करना चाहते हैं ज़िंदगी में? मुझे सच सच बताएं. डू यू पीपल वांट दीज थिंग्स? आरंट वी ऑल वर्किंग हार्ड आवर एंटायर लाइव्स इन चीज़ों को हासिल करने के लिए? All of us are doing it. Exactly. And to be honest, this race never really ends. क्योंकि ये हकीकत है ना कि भाई आपने चलो अब एक घर बना लिया ना, वो 2 घर बना लेते हैं. आपने पूरा गांव खरीद लिया ना, यू वुड थिंक ऑफ मूविंग टू अ डिफरेंट कंट्री कि अब हम ज़रा वहाँ पे भी कुछ कर लें. ठीक है. ही डजंट गिव एन आइडिया. तेरीन देखो, फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट एंड मैथ्स के आप चीज़ों का इक्वेशंस और रिलेशनशिप पता करते हैं, राइट. सो आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन के थ्रू एनर्जी और मास का रिलेशनशिप बताया था. सो इट इज़ंट जस्ट कि हम उससे सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब ही बनाए, उससे और भी बहुत 10,000 चीज़ें बन सकती थी. बट बिकॉज ऑफ दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसको मॉडिफाई करके या उसको फाउंडेशन बना के बाकी डिस्कवरीज के थ्रू हम एटॉमिक बॉम्ब तक पहुँचे. ठीक है. बट ही बेसिकली गेव दिस रिलेशनशिप कि क्या रिलेशनशिप है एनर्जी और मास का आपस में. सो दिस इज़ंट जस्ट एप्लीकेबल फॉर एटॉमिक बॉम्ब, लेकिन उसको यूज़ करके उसको फाउंडेशन बना के ही पीपल वेंट अहेड एंड फाइनली क्रिएटेड वन. से बात समझ आ रही है? यानी कि फ़र्ज़ करो कि हम कहते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब हमने बनाया हुआ है, उसका भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव यूज़ हो सकता है इन अ सेंस.
पॉजिटिव कहाँ होगा कि हम बुरे लोगों को मारने के लिए यूज़ करें, नेगेटिव कहाँ होगा कि हम अपने डोमिनेंस के लिए यूज़ करें, राइट। तो साइंस इज़ साइंस, उसका यूज़ हमारे पर डिपेंड करता है कि आइदर वी वांट टू यूज़ इट इन अ बेटर वे और वी वांट टू यूज़ इट जस्ट टू एक्सर्ट आवर डोमिनेंस, ठीक है। चलें भाई, तो यहाँ पे आइंस्टाइन कह रहे हैं कि ये तमाम मकसद जो हैं एंडीवर, हमारा प्रॉपर्टी हासिल कर लेने का, लग्जरीज ले लेने का, सक्सेस ले लेने का, फॉर आइंस्टाइन दिस सीम टू बी कंटेम्प्टेबल। कंटेम्प्टेबल का मतलब ये नफ़रत के काबिल हैं, इनको अपने पास में कभी लेके आना ही नहीं चाहिए। दे आरंट इवन कंसिडर्ड कि हम अपनी ज़िंदगी में इनको रखें। आइंस्टाइन के नज़दीक जो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, हु कुड ईजिली गेट ऑल द मनी, who obviously had the success, who had very famous portfolio, he is saying कि इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है ज़िंदगी में। My passionate sense of social justice and social responsibility have always contrasted with my pronounced freedom from the need of direct contact। अब कह रहे हैं कि मेरा passionate sense of social justice, कह रहे हैं कि मैं ये बहुत passionately believe करते हैं कि सोसाइटी के अंदर जस्टिस एग्जिस्ट करे। ऑब्वियसली क्लास डिफरेंसेस मौजूद ना हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीवन शुड हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो हासिल किया उसको रिटर्न बैक भी करना है। लेकिन कह रहे हैं कि व्हेन आई थिंक अबाउट द डायरेक्ट कांटेक्ट विद अदर ह्यूमन बींग्स, डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब है कि एक साथ रहना या फिर एज अ फैमिली रहना, हम और कह सकते हैं, ठीक है। ऊपर उन्होंने फेलोशिप का जिक्र तो किया, लेकिन कहीं फैमिली का भी जिक्र नहीं आया। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब है कि वो लोग जिनसे आप डे टू डे बेसिस पे मिलते हैं या उनके साथ रहते हैं या ऑल ऑफ दैट। तो आइंस्टाइन बेसिकली बिलीव्स कि हमें दूसरों को फॉलो नहीं करना चाहिए, राइट, या फिर हमें दूसरों के बताए हुए रास्तों पे नहीं चलना चाहिए। आगे वो कह रहे हैं कि आई गैंग माई ओन गेट, इसका मतलब है कि मैं अपना रास्ता खुद बनाता हूँ। आई डू नॉट बिलीव कि मुझे किसी और के बताए हुए रास्ते पे चलना है, अपने पेरेंट्स या अपने घर वाले या अपनी टीचर या कुछ। नो, आई गैंग माई ओन गेट, मैं अपना रास्ता क्या करता हूँ, खुद बनाता हूँ, ठीक है। एवरीवन कैन जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी जी, एक मिनट में पर्स। अच्छा भाई, आई एम बैक। यहाँ तक सबको समझ आया है? हेलो तहामी, क्या हाल है? आई वॉज जस्ट ड्रिंकिंग सम वाटर, दैट्स वाई आई हैड टू टेक अ लिटिल ब्रेक। ओके, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, चलो ज़बरदस्त। अच्छा भाई, आई गैंग माई ओन गेट का मतलब है, जो हमने पीछे पूरी बात पढ़ी है, कि डायरेक्ट कांटेक्ट की हमें ऐसा नीड नहीं है दुनिया में। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब है कि आपके पेरेंट्स बताएं कि बेटा देखो ये वाला सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, वो वाला सब्जेक्ट कर लो, या फिर बिकॉज आपके फ्रेंड्स जो हैं दे बिलीव कि भाई इन चीज़ों का प्रॉस्पेक्ट आगे चल के ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, हमें ये करना चाहिए। हमें ज़िंदगी का अपना हर फैसला खुद करना है, चाहे वो फिर उसके बुरे असरात हों, गलत हों। दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमारे लिए हैप्पीनेस या सैडनेस को लेके आना। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस, मेक योर ओन डिसीजन। वेरी गुड माजवी। आई गैंग माई ओन गेट एंड आई नेवर बिलोंग टू माई कंट्री, माई होम, माई फ्रेंड्स और इवन माई फैमिली। यानी कि वो कह रहे हैं कि एक इंसान अपने कंट्री से, अपने घर से, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली से नहीं पहचाना जाता, बल्कि योर आइडेंटिटी इज़ यू ओनली। सिर्फ आप हैं अपनी आइडेंटिटी, एंड यू आर दी ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस, फॉर योर फेलियर, फॉर योर हैप्पीनेस, फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स इन योर लाइफ, ठीक है। वेरी गुड लाइबा। सो यानी कि हम बिकॉज ऑफ ये नहीं कि हम इस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, ये हमारी फैमिली है, या दिस इज़ हमारे तो ना बरादरी एंड दिस एंड दैट। नो, आइंस्टाइन बिलीव्स कुछ भी नहीं है। योर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इज़ हु इज़ वॉट इट इज़, उसके अलावा और कुछ आपका ताल्लुक़ नहीं रखता। ये बात समझ आ रही है सबको? वेरी गुड, ठीक है भाई।
तो आई गैंग माई ओन गेट से बात स्टार्ट हुई, अपना रास्ता मुझे खुद बनाना है। और आगे बढ़ के वो ये बात भी कह रहे हैं कि नॉट योर कंट्री, नॉट योर पीपल, नॉट योर फैमिली, नॉट योर होम, कहीं से आप बिलोंग नहीं करते। आपकी आइडेंटिफिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी, आपका नाम आप खुद हैं, और आपको अपने एफर्ट के ऊपर ये सब कुछ हासिल करना है, ठीक है ना। वेरी गुड। और कह रहे हैं कि आई हैव नेवर लॉस्ट एन ऑब्स्टिनेट सेंस ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब होता है अपने आप को किसी चीज़ से थोड़ा सा दूर रखना, यही मतलब होता है डिटैचमेंट का। अब एमसीक्यू ये वाला बस पैराग्राफ ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। डिटैच मतलब दूसरों से दूर रहना। हम फैमिली में रहते हैं, ही इज़ आस्किंग, व्हाट ही इज सेइंग इज़ द सॉल्टिट्यूड। सॉल्टिट्यूड का मतलब है अकेला रहना। तो आइंस्टाइन कह रहे हैं कि सॉल्टिट्यूड एक ऐसी फीलिंग है दैट इंक्रीजेज विद योर एज, या फिर जिसकी नीड जो है वो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम ग्रो करते रहते हैं, इट इंक्रीजेज इन अस, कि हमें अकेला रहना है या फिर हम अकेले कर लें, यू नो। अगर आपने बूढ़े लोगों को देखा भी हो तो वो लोग तंग आ जाते हैं जल्दी से कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, कुछ हो रहा हो। वाई? बिकॉज दे नाउ लिव इन अ बबल ऑफ देयर ओन लाइफ। ऐसा ही होता है। और आइंस्टाइन तो ऐसा लग रहा है कि शुरू से यही बात बोल रहे हैं कि हमें अपने अराउंड खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, हमें खुद ही सब कुछ हासिल करना है, ठीक है। वन इज शार्पली कॉन्शियस येट विदाउट रिग्रेट ऑफ द लिमिट्स रिस्पॉन्स पॉसिबिलिटी ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथी। कह रहे हैं कि अगर आप अपने आप को छोड़ के दूसरों को फॉलो करना शुरू कर दें, यानी कि वी स्टार्ट फॉलोइंग अदर्स, वी स्टार्ट डूइंग व्हाट अदर्स वांट अस टू डू। लाइबा देखो, सॉल्टिट्यूड इजंट नेगेटिव बट लोनलीनेस इज, राइट। सॉल्टिट्यूड का मतलब है कि यू आर अलोन डूइंग व्हाट यू वांट टू डू। लोनलीनेस इज़ अ फीलिंग, आई थिंक, जब आप अपने आप को अकेला फील करने लगते हैं, राइट। व्हेन यू फील लाइक कि मैं अकेला हूँ, कोई भी नहीं है मेरे साथ, में क्या करूँ, मैं क्या करूँ। But solitude is just your own choice when you are alone and you can achieve whatever you want to achieve. ऐसा ही है? You guys think? Right? So Einstein isn't saying that we should stay alone and all of that. He's saying कि solitude, यानी कि we have to be comfortable in our own skin. अपने साथ भी time spend करने की आदत होनी चाहिए इंसान को। There are so many people who cannot be alone because whenever they are alone, उनके दिमाग में ऐसे ऐसे thoughts आते हैं कि they cannot control them, right? Quality time with ourselves, yes, exactly. बिल्कुल ठीक था हामी, thank you for reminding बेटा। यहाँ पे हम इस अभी के लेसन को एंड भी करते हैं और फिर इंशाल्लाह कल हम इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। Thank you so much everyone for coming over after Eid. I hope you all had fun. सबको आवाज़ आए? ज़बरदस्त, चलो ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, सो जस्ट गिविंग अ लिटिल रिकैप, लोगों के ओपिनियंस, लोगों की हैबिट्स, लोगों की जजमेंट्स, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन दीज आर द मोस्ट इनसिक्योर फाउंडेशंस। इनसिक्योर का मतलब है कि यू कैन नेवर एवर ट्रस्ट दीज थिंग्स, चाहे वो सही भी हों चाहे वो गलत हों। दे आर अबाउट देयर परसेप्शन, आपके बारे में नहीं है वो उनके बारे में, उनका व्यू है। सो वी शुड नेवर एवर लेट दीज ओपिनियंस ऑफ अदर पीपल अफेक्ट अस इन एनी वे, ठीक है। अब आगे वो पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें। वो कह रहे हैं कि मेरा पॉलिटिकल आइडिया या गवर्नमेंट का सिस्टम या स्टेट को चलाने का जो सिस्टम है, आइंस्टाइन बिलीव्स कि वो डेमोक्रेसी से बेहतर और कुछ भी नहीं है। अब डेमोक्रेसी का मतलब है उर्दू में जमहूरियत, जो हमारे मुल्क में भी है। डेमोक्रेसी में होता क्या है कि जो कॉमन मैन होता है उसके पास राइट होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का। वोट कास्ट करते हैं, वोट कास्ट करते हैं, वोट कास्ट करते हैं, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं और फिर रिप्रेजेंटेटिव्स उनसे किए गए वादों को पूरा करते हैं। दिस इज़ डेमोक्रेसी, राइट। तो आइंस्टाइन ऑल्सो बिलीव्स कि ये नहीं कि आपने किसी एक को चुना और वो आपके ऊपर आके लीडर बन गया और वो आपको लीड कर रहा है अपनी मर्ज़ी से। ही बिलीव्स कि मुल्क में रहने वाले, सोसाइटी में रहने वाले हर इंडिविजुअल के पास राइट होना चाहिए अपनी मर्ज़ी का। दैट्स व्हाई ही इज सेइंग वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरी पर्सन एज एन इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल की उसकी अपनी चॉइस है व्हाट दे वांट और व्हाट दे डोंट वांट, ठीक है। एंड नो मैन आइडियलाइज्ड, एक आदमी एक मिलिट्रिस्टिक रूल नहीं हो सकता कि जो वो चाहे, जो वो कहे वो सब कुछ हो। वो तो बादशाहों के ज़माने में होता था। सो नो वन शुड बी आइडियलाइज्ड, एवरीवन शुड बी रिस्पेक्टेड एंड शुड हैव अ कंप्लीट फ्रीडम कि वो अपनी मर्जी को करें फुलफिल। इट्स एन आयरनी ऑफ फेट। आयरनी ऑफ फेट का मतलब है कि ये बड़े मज़े की बात है इनके लिए। आयरनी का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? डज एनीवन नो आयरनी? कि किस्मत का एक खेल है इनके साथ, या दिस इज़ बिकॉज ऑफ फेट कि ही हैज़ बीन, ऑब्वियसली आइंस्टाइन है ये, he must have received a lot of admiration in his own life,
ज़िंदगी में रहते हुए ही पीपल वुड हैव बीन लाइक कि आपने ये काम कर दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फिर E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, ये नोबल प्राइज एंड दैट. सो पीपल यूज टू गिव हिम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. ही वॉज एडमायर्ड वाइल ही वॉज लिविंग एज वेल. तो कह रहे हैं कि मैं रेसिपिएंट रहा हूँ, आई हैव ऑलवेज रिसीव्ड अ लॉट ऑफ एडमिरेशन फ्रॉम द पीपल. लेकिन कह रहे हैं कि इसमें ये नहीं है कि इस एडमिरेशन में मेरा कोई बहुत बड़ा कारनामा है या मैंने कुछ बहुत ज़बरदस्त काम कर दिया. आइंस्टाइन ये बात बोल रहे हैं कि नो मेरिट ऑफ माई ओन, इसमें कोई मेरा बहुत बड़ा कारनामा शामिल नहीं है इस एक्सेसिव एडमिरेशन को लेने में. कह रहे हैं इसकी वजह सिर्फ ये है कि वो लोग जो कि ख़ुद कुछ हासिल नहीं कर पाए, आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड 2 और मोर आइडियाज़ जो कि बाकी लोगों के बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे. एंड देन आई वॉज एबल कि मैं उन चीज़ों को पता कर सकूँगी वो क्या हैं. यानी कि दिस इज़ द रीज़न वाई पीपल आर शोइंग हिम सो मच रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, बिकॉज दे वरंट एबल टू डू सम थिंग्स जो कि आइंस्टाइन ने कर दी. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही मीन्स. ठीक है, ये बात समझ आ रही है. इसीलिए वो ऊपर कह रहे हैं कि नो मैन शुड बी आइडियलाइज. आइडियलाइज करने का मतलब है हम किसी को जाके अपने सर पे बिठा लें और फिर हम उसके आगे पीछे घूमते रहें, और फिर हमारे यहाँ तो लिटरली लोग कुर्बान ही हो जाते हैं दूसरों के ऊपर, चाहे फिर वो कोई पॉलिटिकल फिगर हो या कोई रिलीजियस फिगर हो, कुछ भी हो. आइंस्टाइन कह रहे हैं कि मुझे भी आइडियलाइज ना करें. द ओनली रीज़न वाई आई एम गेटिंग ऑल ऑफ दिस एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट, उसकी वजह क्या है कि आई वॉज एबल टू अनकवर अ फ्यू मिस्ट्रीज जो कि बाकी लोग नहीं कर पाए थे. एंड दैट्स वाई दे शो मी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. बट स्टिल ही इज सेइंग आई शुड नॉट बी आइडियलाइज्ड. पाकिस्तानी होते तो अपने लिए सबसे पहले एक तख्त बनवाते और उसके ऊपर बैठ जाते जाके. I am quite aware that it is necessary for the success of any complex being. कह रहे हैं कि किसी भी सक्सेस को हासिल करने के लिए, कोई कामयाबी हासिल करने के लिए, what does he thinks is necessary? कि one man to do the thinking, कि सिर्फ एक आदमी के पास होना चाहिए सोचने और डायरेक्शन देने का लोगों के काम. यानी कि ये नहीं कि आपके पास 10 लोगों का ग्रुप है तो 10 के 10 लोग जो हैं दे आर थिंकिंग एंड प्लानिंग एंड क्रिएटिंग कि भाई हमें ये स्ट्रैटेजी है और ऐसे चलना है, तो फिर वो 10 अलग अलग डायरेक्शंस में आप जा रहे होंगे. ऐसे ही होगा ना. सो नो मैटर हाउ मेनी पीपल आर इन द ग्रुप, हाउ मेनी पीपल आर लिविंग इन अ कंट्री और अ सोसाइटी, सोचने का काम, प्लानिंग का काम, डायरेक्टिंग का काम किसको करना चाहिए? एक इंसान को. लेकिन वो इंसान कैसे चूज़ करेंगे आप? ही शुड नॉट बी कंपेल्ड. यानी कि ये नहीं कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती आके बैठ जाए आपके ऊपर कि मैं बताऊँगा तुम लोगों को सब कुछ. ही मस्ट बी चोजन बाय द पीपल. और कौन चूज़ करेगा? वही लोग चूज़ करेंगे. लेकिन फिर उस लीडर के ऊपर है जिम्मेदारी. इट्स ओनली हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक एंड प्लान एंड क्रिएट स्ट्रैटेजीज. ये बात समझ आ रही है? एंड दिस इज़ व्हाट डेमोक्रेसी इज़. when we choose our leaders and they go sit in the assembly and senate and create governments, फिर वो उनकी जिम्मेदारी है करना. देन वी कैन नॉट क्वेश्चन देम क्योंकि आपने उनको उठा के बैठा दिया. अब दे विल डू एंड दे विल क्रिएट देयर प्लान्स और हमें क्या करना है? हमें उसको मानना है. वरना फिर नेक्स्ट टाइम आपने किसी और को चूज़ करना है. ऐसा ही है. और चूज़ करने से पहले वी हैव टू मेक श्योर कि हम किसको चूज़ करें, व्हाट आर दिस प्लान्स, व्हाट आर दिस स्ट्रैटेजीज. बाद में तो सिर्फ इम्प्लीमेंट करने का काम है. एन ऑटोक्रेटिक सिस्टम ऑफ कोअर्जन. आगे वो एक डेमोक्रेसी के बिल्कुल ऑपोजिट सिस्टम की बात करें, ऑटोक्रेटिक. ऑटोमेटिक का मतलब होता है कोई चीज़ खुद से हो जाए. ऑटोमेटिक कार का मतलब है इट कैन वर्क ऑन इट्स ओन, राइट. ऑटोमेटिक मशीन कैन वर्क ऑन इट्स ओन. तो ऑटोक्रेटिक सिस्टम कौन सा होता है? एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे आपका जो भी लीडर है उसको आपकी ज़रूरत ही नहीं है आपकी अप्रूवल की, आपके वोट्स की. They can do what they want, they can do how they want it, they can do whenever they want it. That's autocratic system, right? और ये सिस्टम जो होता है ये हमेशा कोअर्जन का होता है. कोअर्जन का मतलब है कि आप लोगों के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनसे मनवाते हैं अपने आप को. ये नहीं कि वो खुशी खुशी आपको ला के बोलेंगे भाई यू आर द लीडर, वी आर कास्टिंग वोट. नहीं, वहाँ पर लोगों को मजबूरन ज़बरदस्ती दे हैव टू एक्सेप्ट यू एज द लीडर. तो कह रहे हैं कि अगर इस तरह के सिस्टम हो और डेमोक्रेसी का सिस्टम ना हो तो इसकी कोई फ़ायदा नहीं है. इट कैन स्टे बट इट सून डीजेनरेट्स. डीजेनरेट्स का, जेनरेट का मतलब होता है कुछ बनाना, राइट. तो डीजेनरेट का मतलब क्या होता है? कुछ ख़त्म हो जाना, राइट. तो कह रहे हैं कि ये सिस्टम बेशक एग्जिस्ट करता है, लोग इससे फ़ायदा भी उठाते हैं. वी हैव सीन एग्जाम्पल्स इन आवर ओन कंट्री. देर आर लॉट ऑफ अदर कंट्रीज़ जहाँ पे सब कुछ हो रहा है. लेकिन वो ये भी कह रहे हैं साथ में कि ये सिस्टम डीजेनरेट भी खुद हो जाता है. यानी कि इट्स नॉट फॉर लॉन्ग टर्म. आप कब तक लोगों पे जुल्म करेंगे? अल्टीमेटली मुल्क भी बर्बाद हो जाएगा, लोग भी मर जाएंगे, फिर सिस्टम कहाँ जाएगा? द सिस्टम विल डीजेनरेट. सो या तो ये होगा कि ये सिस्टम आपको मुकम्मल तौर पे कम्प्लीटली ख़त्म कर दे और फिर डीजेनरेट हो, या पहले डीजेनरेट हो जाए. बट इट्स डेस्टिन्ड टू एंड.
ये कभी लॉन्ग टर्म चल नहीं सकता, ठीक है। क्यों, आगे वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। फोर्स ऑलवेज अट्रैक्ट्स मैन ऑफ लो मोरालिटी। मोरल्स का मतलब क्या होता है, रूल्स, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, ह्यूमैनिटी। तो कह रहे हैं अगर ताकत के ज़ोर पर हुकूमत करनी है तो वो हुकूमत करने वाले लोग भी कुछ स्पेसिफिक होते हैं। वो कौन लोग होते हैं, जिनके पास ना मोरल्स होते हैं, ना वैल्यूज़ होती हैं, ना ह्यूमैनिटी होती है, ना कुछ नहीं होता। और हमेशा हम दुनिया में ये बात कहते हैं कि बुरे लोग होते कम हैं, लेकिन बिकॉज अच्छे लोग उनको रोकते नहीं हैं तभी वो आके आपके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, यही होता है। सो दैट्स वाई ही सेइंग कि ये सिस्टम रीजनरेट क्यों होता है, क्योंकि सिर्फ वो लोग जिनमें मोरल्स और एथिक्स नहीं होते, दे आर द वन यूजिंग दिस सिस्टम, दे आर द वन मेकिंग अप द सिस्टम, ऑटोक्रेटिक सिस्टम, राइट। तो एज लॉन्ग एज दे आर देयर वो सिस्टम भी वहाँ रहता है, लेकिन जब अच्छे लोग उनकी जगह आ जाए तो द सिस्टम, ऑटोक्रेटिक सिस्टम विल एंड, ऑब्वियस सी बात है, राइट। बिल्कुल ठीक लाइबा, एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। आगे बात है उनकी कि आई बिलीव इट टू बी एन इनवेरिएबल रूल। इनवेरिएबल का मतलब क्या होता है, फिजिक्स या मैथ्स में पढ़ा होगा किसी ने, जो चीज़ बदल नहीं सकती, राइट। अभी क्या चीज़ नहीं बदल सकती, एक ऐसा रूल कि टायरेंट्स ऑफ जीनियस आर सक्सीडेड बाय स्काउंड्रल्स। टायरेंट्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रूलर जिसका काम हो लोगों पर जुल्म करना, ठीक है। यानी कि देयर पर्पस इज़ कि हम हुकूमत क्यों करें, हम लोगों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती करें, अपना मकसद हासिल करें। तो कह रहे हैं कि जब भी ये टायरेंट्स का रूल होता है, उनकी हुकूमत होती है लोगों पे, और जब वो चले जाते हैं तो उनके बाद कौन आता है, दे आर सक्सीडेड बाय स्काउंड्रल्स। स्काउंड्रल का मतलब कौन होगा, वो लोग जो कि लूटने में, जो कि चोरी, बुरे किस्म के लोग जो होते हैं, जैसे कि ब्लैक माइकल के स्काउंड्रल्स थे, रिमेंबर। तो बुरी चीज़ों को बुरी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी, अच्छी चीज़ों को अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी, राइट। लेकिन ऊपर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की थी कि वन मैन शुड बी रिस्पेक्टेड एज एन इंडिविजुअल। हमारे वोट ही हैं जो चूज़ करके लोगों को लेके आ रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल हम अपने मुल्क में देख सकते हैं, राइट। अभी जो आपके पास असेंबली में लोग बैठे हैं, उनमें से कोई भी नहीं कहेगा कि मैंने तो ज़बरदस्ती आके मैं सीट के ऊपर बैठ गया हूँ अपनी असेंबली की, मैं ज़बरदस्ती सैनेटर बन गया हूँ। नो, दे वुड से कि लोगों के वोट लेके आए हैं, विच इज़ इन फैक्ट ट्रू। पीपल हैव कास्टेड देयर वोट, हैवंट दे। तो अगर हम अच्छे लोगों को सिस्टम में लेके आएंगे, अच्छा सिस्टम वुड वर्क। इफ़ वी विल अट्रैक्ट द बैड वंस, तो उनके बाद भी बुरे लोग ही आएंगे, ठीक है। फॉर दिस रीज़न आइंस्टाइन कहने, इसी वजह से आई हैव ऑलवेज बीन पैशनेटली अपोज टू सिस्टम्स वी सी इन इटली एंड रशिया। इटली एंड रशिया में इस टाइम पे कौन से सिस्टम्स थे जब ये ऐसे उन्होंने लिखा था, दे वर द सिस्टम ऑफ ऑटोक्रेटिज्म। यानी कि सिर्फ स्टेट की वैल्यू है, स्टेट जो आपको ऑर्डर करेगी आपने वो करना है। इफ़ स्टेट सेज कि लोगों ने मिलिट्री में शामिल हो जाना है, सब ने आके शामिल होना है। इफ़ स्टेट आस्क कि आपने इतनी सैलरी में से इतना अमाउंट गवर्नमेंट को देना है, आपने देना है। स्टेट टेल्स यू के यू शुड हैव 2 चिल्ड्रन और 3 चिल्ड्रन, आपके बच्चे भी तो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये सिस्टम अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन नहीं होना चाहिए। एंड दीज वर द सिस्टम जो कि इटली में भी था और रशिया में है इन अ वे अभी तक, सही है। द थिंग दैट हैज़ ब्रॉट डिस्क्रेडिट अपॉन द प्रिवेलिंग फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे हमारी बात हो रही है इन अ सेंस, क्योंकि हमारे मुल्क में भी तो माजुबीन इज सेइंग राइट कि डेमोक्रेसी तो हमारे मुल्क में भी है। किसने कहा कि डेमोक्रेसी नहीं है? पूरा पूरा का पूरा इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के बाद पूरे सब कुछ हुआ है, इट्स डेमोक्रेसी। यस, दैट्स व्हाट आइंस्टाइन इज सेइंग कि अभी जो डेमोक्रेसी की फॉर्म है जो आज हमारे मुल्क में है, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर अ लॉन्ग टाइम अगो यूरोप में भी इसी तरह की डेमोक्रेसी मौजूद थी, ठीक है। एंड ही बिलीव्स कि लोगों को जो डेमोक्रेसी के ऊपर इतना गुस्सा है या नाराज़ी या डिस्क्रेडिट का मतलब है जो उसकी अहमियत कम हुई है, उसकी वजह ये नहीं है कि डेमोक्रेसी का सिस्टम बुरा है या उसका आइडियाज़ बुरे हैं, बट उसकी वजह ये है कि जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, जो लोग गवर्नमेंट्स को बनाते हैं और चलाते हैं, उनके अंदर एबिलिटी ही नहीं है कि वो सही तरीके से काम करें। तो उनकी डिसेबिलिटी की वजह से द एंटायर सिस्टम हैज़ कोलैप्स्ड। अब आप मुझे खुद से बताएं, सिस्टम तो बुरा नहीं हो सकता ना, राइट। डेमोक्रेसी में आपको बताया गया है कि पीपल विल कास्ट देयर वोट्स, द लीडर्स वुड कम, दे वुड बी आंसरेबल, दे वुड बी दिस एंड दे वुड बी दैट। लेकिन अगर काम करने वाले ये काम ना करें तो क्या सिस्टम बुरा होगा? इट इज़ द क्वेश्चन मार्क ऑन द पीपल, नॉट द सिस्टम।
तो हम जो अपने मुल्क में एक जनरल सी बात कहते हैं कि भाई सिस्टम ही बर्बाद हो गया है, सिस्टम ही ख़त्म हो गया है, सिस्टम है ही नहीं, उसका मत कहना हमें ये चाहिए कि द सिस्टम इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड द वे इट इज़ सपोज टू बी। असल बात यही है जो आइंस्टाइन कह रहे हैं, ठीक है। एंड टू द इम्पर्सनल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब है इलेक्शंस का पूरा चलाने वाले, लोगों को खड़ा करने वाले, उनको वोट मिलने वाले। तो यहाँ बात की जा रही है इम्पर्सनल कैरेक्टर, जो असल लोग जिन्हें ये पूरी चीज़ें अरेंज करानी है, व्हेन दे हैव अ फॉल्ट इन देयर कैरेक्टर, तो फिर सिस्टम ज़ाहिर है सही नहीं चलेगा। जब आप सिस्टम के अंदर एनर्जी ही नेगेटिव डालेंगे तो आपको रिजल्ट भी नेगेटिव मिलेगा। एग्जैक्टली शराज, या दैट्स राइट। तो ये मकसद यहाँ पे जो बुराई हमारे मुल्क में चल रही है डेमोक्रेसी की, इट्स नॉट द डेमोक्रेसी इटसेल्फ, इट्स द पीपल, दैट्स व्हाई बुराई है उस डेमोक्रेसी में। एंड आइंस्टाइन इज सेइंग कि इन दिस रिस्पेक्ट, अगर हम इस तरीके पे एनालाइज करें दुनिया के मुल्कों को, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही बिलीव्स कि उनके पास डेमोक्रेसी की सही शक्ल मौजूद है। दे हैव अ रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट, उनके पास प्रेसिडेंट के पास सबसे ज़्यादा ताकत होती है। जो आपकी उनकी मिलिट्री होती है उसको भी लीड उनका प्रेसिडेंट कर रहा होता है। अगर कहीं पे एटम बम उन्हें गिराना है उसकी भी इजाज़त कौन देगा? प्रेसिडेंट देगा। किसी मुल्क को इन्वेट करना है, प्रेसिडेंट विल गिव दी परमिशन, यानी कि प्रेसिडेंट हैज़ ऑल द पावर्स इन अमेरिका। और उसके पास कितना टाइम होता है? उसके पास होती है 4 years की गवर्नमेंट का टर्म, एंड देन द प्रेसिडेंट हैज़ ऑल द पावर्स टू डू एवरीथिंग, ठीक है। 7 sufficient powers. On the other hand, what I value in our political system is the extensive provision. अब यहाँ पे आपको बताएं, हमारे यहाँ जो वज़ीर आज़म भी हम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो उन लोगों के वोट से बनते हैं जो कि असेंबली में इलेक्ट होके जाते हैं, राइट। लेकिन अमेरिका के अंदर उनका जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्ट लोग चूज़ करते हैं, यानी कि वो मुल्क के पूरे जितने भी आपके होते हैं वोट देने वाले इंस्टीट्यूशंस, वहाँ से वो प्रेसिडेंट्स खड़े होते हैं और हर स्टेट्स उनको वोट देती है। फिर जहाँ से जितने जीतते हैं वो प्रेसिडेंट बन जाता है। तो यहाँ पे लिटरली द पीपल आर सेलेक्टिंग द हेड ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ हम पीएम को तो चूज़ नहीं कर रहे होते डायरेक्टली, राइट। यहाँ पर द प्रेसिडेंट इज़ चोजन बाय द पीपल, डायरेक्टली बाय द पीपल। तो जाहिर है फिर लोग फील कि भाई उसके साथ हमारी एक क्लोज बाउंड भी है, दे कैन क्वेश्चन हिम एंड एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर्स, ऑल ऑफ दैट, कह रहे हैं कि ये सिस्टम भी बुरा नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास लोगों तक एक्सटेंसिव प्रोविजंस पहुंच रहे हैं। यू पीपल मस्ट हैव हर्ड के लोकल गवर्नमेंट होती है, सिटी गवर्नमेंट होती है। इन जनरल इलेक्शन से पहले हमारे पास लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए थे, राइट। तो उस वजह से जब आपके नेटवर्क नीचे तक फैला हुआ होता है तो आप लोगों को ईजिली रीच कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जितना बड़ा आपकी, जितनी ज़्यादा आपकी रूट्स होंगी, लोगों को आप ज़्यादा रीच कर सकते हैं, ठीक है। The really valuable thing in the pageant of human life seems to me not the state but the individual. Again वही बात, अगर हमें ह्यूमन लाइफ को डेवलपमेंट लेके आनी है, उससे प्रोग्रेस लेके आनी है, आगे बढ़ाना है, एडवांसमेंट्स करनी है, तो फिर हमें स्टेट को वैल्यू नहीं देनी, बल्कि वैल्यू किसे देनी है? इंडिविजुअल को देनी है, एक आम शख्स को वैल्यू देनी है। कैसी वैल्यू देनी है? ताकि उसकी क्रिएटिविटी, उसकी पर्सनालिटी, उसका आर्ट, उसका स्किल जो है वो उभर के बाहर आए। ये नहीं कि स्टेट उसको दबा दे। स्टेट हैज़ टू नरिश द पीपल ताकि वो अपने स्किल्स को पूरे के पूरे तौर पे स्टेट के लिए फिर अल्टीमेटली यूज़ करें, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसी कौम है जो कि सोच भी नहीं सकती, सोचती है तो दिमाग में सब कुछ रह जाता है, उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, उसमें कुछ ये भी सोच नहीं है कि हम किसको चूज़ करें, किसको नहीं करें, उनसे क्या क्वेश्चन करें, क्या ना करें, तो फिर ही बिलीव्स कि वो कौम सिर्फ एक हर्ड बन के रह जाती है, यानी कि एनिमल्स का एक ग्रुप हु हैव नो माइंड, हु हैव नो फीलिंग, हु हैव नो थिंकिंग, हु हैव नथिंग। यस, बिल्कुल ठीक, सही है। तो यहाँ पे भी एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द पीपल एक्चुअली, नॉट द लीडर्स, नॉट द वंस जिनको वो वोट दे रहे हैं, बल्कि लोगों के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, क्योंकि दे आर गोइंग टू रन द स्टेट, और स्टेट फिर जैसे रन होगी उसका असर पहुँचेगा डायरेक्टली उन लोगों के ऊपर। आगे बात हो रही है अब यहाँ पे अलग टॉपिक की, जो कि है वॉर का टॉपिक, जंगों का टॉपिक। जब भी साइंस का जिक्र आया है तो वी नो कि साइंस को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली यूज़ किया गया है, क्योंकि इफ़ वी आर क्रिएटिंग वेपन्स तो फिर जाहिर सी बात है, हाउ विल वी मेक श्योर कि वो वेपन सही चीज़ के लिए यूज़ हों।
अब गज़ा की सिचुएशन हम सबके सामने है. इसराइल इज़ killing the people. Why? Because of this scientific advancement they have. कितनी तरह के बॉम्ब्स नहीं है उनके पास. सो हाउ विल यू मेक श्योर कि किसको हम सही बोलें, किसको हम गलत बोलें. अब हाफ ऑफ द यूरोप इज स्टिल इम्प्लाइंग कि इसराइल इज़ डूइंग द राइट थिंग. उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है. दे बिलीव दे आर डूइंग द राइट थिंग, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो बुरी चीज़ है. तो इफ़ वी हैव क्रिएटेड द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो उनको कंट्रोल करना और ज़्यादा मुश्किल है. इसीलिए आइंस्टाइन कह रहे हैं कि वॉर सीम्स टू मी अ मीन एंड कंटेम्प्टेबल थिंग. यानी कि वॉर सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मकासद के लिए लड़ी जाती है. इट्स समथिंग वी शुड हेट, कंटेम्प्ट, नफरत करनी चाहिए. और कह रहे हैं आई वुड रादर बी हैक्ड इन पीसेस, कि आप मुझे खड़ा करके मेरे टुकड़े टुकड़े कर दें, देन टू टेक पार्ट इन दिस एबॉमिनेबल बिजनेस. बिजनेस, जंग को कह रहे हैं बिजनेस, और ऐसा बिजनेस जो कि लोगों के जान के बदले आपको फ़ायदा पहुँचाए. लेकिन कह रहे हैं कि फिर भी दुनिया में कब से जंगें चली आ रही हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू दिस वेरी करेंट टाइम. अभी तक जंगें चली जा रही हैं. तो क्यों चल रही हैं? बिकॉज पीपल डोंट वांट टू लेट गो ऑफ द ग्रेट बेनिफिट्स दे आर गेटिंग. अब इस जंग के बाद आपको पता है इसराइल सेल्स दीज वेरी सेम वेपन्स टू ऑल द कंट्रीज, और साथ में उनके पास एक फिजिकल प्रूफ भी है कि हमारे वेपन्स क्या क्या डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं. एंड कंट्रीज बाय इट फ्रॉम देम, इवन मुस्लिम कंट्रीज. ठीक है. अभी इस जंग की वजह से कितने आपके जो मुल्क हैं उन्होंने अपने वेपन्स के बड़े बड़े से मुआहदे किए होंगे, लाइक बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स. तो ये इतने बड़े बड़े जब आपके फ़ायदे होते हैं, तो फिर वाई वुड यू एंड सच अ बिजनेस? यू वोंट एंड इट. ठीक है. अगर हम पीस के लिए दुनिया को रखना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन वी शुड हैव एंडेड द वॉर्स अ लॉन्ग टाइम अगो. लेकिन बिकॉज आपके ज़ाती मकासद अभी भी जुड़े हुए हैं जंगों के साथ, दैट्स व्हाई दे आर स्टिल गोइंग ऑन. ठीक है. वरना दे वुड हैव डिसअपेयर्ड अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो. वर्ल्ड वॉर 1 हुई, दुनिया बहुत रोई कि भाई इतनी डिस्ट्रक्शन, पूरी दुनिया. वर्ल्ड वॉर 2 हो गई, फिर दुनिया बहुत रोई, एवरीबडी क्राइड, यूएन वाज क्रिएटेड, ऑल ऑफ दैट. उसके बाद और कितनी दफ़ा जंगें हुई हैं मुल्क में, दुनिया के अंदर. अफ़गानिस्तान, बॉस्निया, आपका इराक़, फिर उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक्स, फ़लस्तीन में ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कॉन्फ्लिक्ट, और भी पहले कई दफ़ा हो चुका है. इट्स अ शेम कि ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स 90% ऑफ देम हैपेंड इन मुस्लिम कंट्रीज़, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाए. लेकिन अगर चाहते तो कर भी सकते थे, बट बिकॉज दिस सिस्टमैटिक करप्शन, यानी कि लोगों को ब्रेन वॉश करना कि नहीं भाई ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. अब जब इंडिया में इलेक्शंस का टाइम आता है, दे ऑलवेज डू इन देयर स्पीचेस कि भाई पाकिस्तान से हम लड़ेंगे और हम उसे मारेंगे, और कभी उनके फ़ौजी मर गए, पाकिस्तान ने ये किया हुआ है. लोगों को आप सिर्फ एक तरह से उभार रहे होते हैं उनके अंदर पेट्रियाटिक जज्बा कि आप अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को हासिल कर सकें. तो जंगें भी सेम चीज़ हैं. कोई भी मुल्क अगर कोई जंग लड़ता है, 99% ऑफ द टाइम आइंस्टाइन ये बात कह रहे हैं कि वो उनके पॉलिटिकल और कमर्शियल फ़ायदों के लिए. डिफेंड करें तो अलग बात है, लेकिन अगर आप अटैक करें दैट मीन्स उसमें आपका फ़ायदा ही शामिल है. ओके. द फेयरेस्ट थिंग वी कैन एक्सपीरियंस इज़ द मिस्टीरियस. इस दुनिया में सबसे फेयरेस्ट चीज़, एक ऐसी चीज़ जिसको हम कह सकते हैं कि इट्स अ फाउंडेशन टू अदर थिंग्स, वो है आपके पास मिस्टीरियस या मिस्ट्री. इसका मतलब है समथिंग दैट वी डू नॉट नो, और ये नहीं पता होना ही समथिंग दैट फोर्सेस अस कि हम उसको पता करें. राइट. अब आइंस्टाइन मस्ट हैव आस्क्ड हिमसेल्फ कि भाई ये टाइम है, ये स्पेस है, व्हाट इज़ इट, हाउ कैन वी क्रॉस देम एंड ऑल ऑफ दैट. इसी मिस्ट्री की वजह से ही वेंटेड टू डू द डिस्कवरीज. राइट. हु वाज द साइंटिस्ट जिसके सर पे आके गिरा था एक एप्पल फ्रॉम द ट्री, एंड ही थॉट कि भाई ये नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया. इट वाज अ मिस्ट्री फॉर द पीपल. राइट. क्वेश्चन सबने किए होंगे, लेकिन ही वेंट आफ्टर दिस मिस्ट्री. तो आइंस्टाइन बिलीव्स कि दिस इज़ अ फंडामेंटल इमोशन, और ये इमोशन है जो कि हर आर्ट, हर साइंस, हर स्किल के सबसे फाउंडेशन पे मौजूद है. ही हु नोज इट नॉट कैन नो लॉन्गर वंडर. जिसके पास मिस्ट्री ही नहीं है, इसका मतलब कि वो वंडर ही नहीं कर सकता, वो सोच ही नहीं सकता. ही कैन नो लॉन्गर फील अमेजमेंट. वो कभी हैरान भी नहीं हो सकता चीज़ों पे. ही इज़ एज गुड एज डेड. वो सिर्फ एक मरे हुए इंसान की तरह. इफ़ यू डोंट हैव अ मिस्ट्री, इफ़ यू डोंट हैव क्वेश्चंस, तो इसका मतलब आप एक स्नफ्ड आउट कैंडल है. स्नफ्ड आउट का मतलब बुझी हुई. एक कैंडल का काम है जलना. अगर वो कैंडल बुझी हुई है तो उसका मतलब इट्स नॉट डूइंग व्हाट इट वाज क्रिएटेड फॉर. क्या फ़ायदा उस कैंडल का? कुछ भी नहीं. दैट्स व्हाट वी बिकम अगर हम मिस्ट्री को ज़िंदगी से निकाल दें. इट वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ मिस्ट्री, इवन इफ
मिक्सड विथ फियर दैट इंजेंडर्ड रिलीजन. इंजेंडर्ड का मतलब है किसी चीज़ को बनाना. तो करें जो हम रिलीजन तक भी पहुँचे वो मिस्ट्री की वजह से पहुँचे. भाई, why is the sun coming up at these particular hours and then it disappears and then the moon comes up and then a literal human being, उसकी जो बर्थ पूरी की पूरी बर्थ है, एक प्लांट जो कि सीड आप लगा रहे हैं ज़मीन में becomes a big tree. People must have questioned कि क्यों ऐसा हो रहा है, कौन ऐसे कर रहा है. And these mysteries, these questions led them to the religion. ऐसा ही है. तो एवरीथिंग दैट इज़ इन द वर्ल्ड बेसिकली उसकी क्रिएशन, उसकी डिस्कवरी तक हम कैसे पहुँचे हैं? बिकॉज ऑफ द मिस्ट्री, बिकॉज ऑफ द मिस्टीरियस. ठीक है एवरीवन. अ नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग वी कैन नॉट पेनिट्रेट, यानी कि एक ऐसी चीज़ की नॉलेज जिसको हम वी कैन नॉट पेनिट्रेट का मतलब हम समझ नहीं सकते वो क्या है, वो क्यों है, वो कैसे आई है, उसको हम कैसे समझें, उसको क्या ना करें, कि वही इसी मिस्ट्री की वजह से हम तक नॉलेज पहुँचती है, जिसकी वजह से आप रिलीजन तक भी पहुँचे हैं, आपने डिस्कवरीज भी की हैं, आपने एडवांसमेंट्स भी किए हैं, आपने ज़िंदगी में प्रोग्रेस भी की है. इफ़ वी डिड नॉट हैव दिस इमोशन इन अस, अगर ह्यूमन बींग्स ने इस मिस्ट्री के इमोशंस को उठा के साइड पे कर दिया होता तो हम एक्चुअली कुछ भी ना कर पाते. और आइंस्टाइन यहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं कि अगर इस सेंस में बात करें कि रिलीजन तक हम कैसे पहुँचे हैं, बिकॉज ऑफ मिस्ट्री, बिकॉज ऑफ ढूंढ ढांड के खुद से रिलीजन बनाना, तो फिर कह रहे हैं कि आई एम अ रिलीजियस मैन. अगर हम बात किस सेंस में कर रहे हैं, इंसान की अपने बलबूते के ऊपर रिलीजन तक पहुंचने को. ठीक है. आई कैन नॉट कंसीव ऑफ अ गॉड. कंसीव का मतलब समझना. कहने कि मैं ऐसे किसी खुदा को नहीं मानता जो कि अपने क्रिएचर्स को रिवॉर्ड दे, जजा दे और पानिश करे, यानी कि सज़ा दे किस बात के ऊपर कि आपने इस दुनिया में क्या किया और क्या नहीं किया. ठीक है. यानी कि ही बिलीव्स कि अगर एक ऐसा खुदा है हु हैज़ अ विल, जिसकी ये मर्ज़ी है भाई कि मैं किसी को सज़ा दूँ, किसी को जज, कहने कि मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ होता है. अब ये आइंस्टाइन का बिलीफ है, हमारा बिलीफ नहीं है. ठीक है. एन इंडिविजुअल हु शुड सर्वाइव इज फिजिकल डेथ इज़ ऑल्सो बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन. अब ये भी वही सवाल जो अक्सर नॉन बिलीवर्स करते हैं कि एक इंसान मर जाने के बाद व्हेन ही इज़ ऑल डीकम्पोज्ड, मट्टी का हिस्सा बन चुका है, तो फिर वो कैसे खड़ा होगा? दैट्स व्हाट ही इज़ आस्किंग एज वेल. और कहेंगे नो डू आई विश इट अदरवाइज. और कहेंगे ना मेरी ख्वाहिश है कि कोई दोबारा ज़िंदगी हो इंसान की. ठीक है. क्योंकि कह रहे हैं कि इन तरह की तमाम अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो कहाँ से निकली हैं? वो सिर्फ निकली हैं फेयर्स की वजह से और इगोइज़म, यानी कि वो लोग जो ही बिलीव्स कि ये सब लोगों की बनाई हुई बातें हैं और ऐसा असल में कुछ भी नहीं है. ठीक है. इनफ फॉर मी द मिस्ट्री ऑफ एटर्निटी ऑफ लाइफ. कह रहे हैं कि एटर्निटी ऑफ लाइफ जो है वो मौजूद नहीं है, यानी कि ही बिलीव्स कि ये ज़िंदगी यहाँ की है, ख़त्म हो गई, इंसान पे इटर्नल नहीं है. वी आर ओनली बाउंड फॉर दिस अर्थ, दिस लाइफ. व्हेन इट एंड्स वी एंड, और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं है, उसके बाद ख़त्म हो चुका है. दैट्स व्हाट आइंस्टाइन बिलीव्स. ठीक है. क्लियर एवरीवन? क्लियर? Very well. The chapter is nearing its end as well. Or the chapter has ended. I think the chapter has ended right here. Be it ever so tiny or the reason to manifest itself in the nature. यानी कि he believes कि हमारे actions, हमारी endeavors, हमारी कोशिशें इस दुनिया की हद तक हैं. Once this life ends, everything ends with it. We end with it. We are not going to wake up again. He believes that कि इस तरह की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि उन्होंने डर के मारे ये सब बना लिया है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है. सो दिस स्पेसिफिकली मैंशंस कि आइंस्टाइन डिड नॉट बिलीव एनी रिलीजन, क्योंकि जूइज़म या जूडिज़म जो है, यहूदियों का जो रिलीजन है, दे ऑल्सो बिलीव कि आपको मौत के बाद उठना है. बट आइंस्टाइन राइट हियर इज सेइंग व्हाट? कि नन ऑफ दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है एवरीवन. विद दिस वी एंड द चैप्टर एज वेल. द वर्ल्ड एज आई सी इट. आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड इट. कल हम इसके MCQs वगैरह भी कर लेंगे. बट आई होप यूर ऑल क्लियर. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी. कॉमेंट.